I will be marking this node as 1. Now, then I move further ahead. Now let me move in the downward direction, and then I will get another node or point, as the case may be. Here I am getting a node. There are 3 current carrying paths that are meeting, but from 1 to this point there is no circuit element. So along this path I do not find any circuit element, so this becomes a short. So this is a short or a wire which is joining this point or this node and this node, so they are going to carry the same label. तो यहाँ पर बच्चों लेबल हमने इसको 1 से किया था, तो यहाँ पर भी मैं इसको लेबल 1 से ही करूंगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हुए मुझे कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं मिल रहा है। क्योंकि कोई सर्किट एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका लेबल भी चेंज नहीं होगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते हुए मुझे कोई भी सर्किट एलिमेंट रास्ते में नहीं मिला, इसलिए इसका लेबल भी 1 था, तो इसका लेबल भी मैंने 1 कर दिया। अब चलिए यहां से लेट्स मूव अहेड एंड गो ऑन टू दिस पॉइंट। नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू रीच दिस पॉइंट, आई इनकाउंटर दिस सर्किट एलिमेंट। ये वाला सर्किट एलिमेंट मुझे मिल गया ना। अब चूंकि यहाँ रास्ते में मुझे एक और सर्किट एलिमेंट मिल गया, तो अब यहां से यहाँ का तो लेबल 1 था, लेकिन जब मैं यहां से इधर की तरफ आऊंगा तो इसको लेबल मुझे अब 2 करना पड़ेगा, क्योंकि इस रास्ते में आई मेट अ सर्किट एलिमेंट। Is that point clear to all of you? Now, अब यहां से चल रहा हूं मैं 2 पॉइंट से और मैं राइट की तरफ बढ़ता हूं। आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय राइट एंड वंस अगेन आई गेट अ सर्किट एलिमेंट, एंड सिंस आई एम गेटिंग अनदर सर्किट एलिमेंट, सो द लेबल विल चेंज when I am going to move towards my right, and this will become my new label, and I am going to mark it as label number 3 or number it as 3. Now from here, let me just move in the upward direction. Now when I move in the upward direction, you can see there is no circuit element in this particular path, so this will also be labeled as 3. This is a point, not a node. ये point है बच्चों, ये node नहीं कहलाता है। node कहलाने के लिए it should be more than 2 current carrying paths that are going to meet. Here you are finding it, there are only 2 current carrying paths, so that's the reason why it is going to be referred by as us as point rather than being called as node. You should be able to differentiate between the terms nodes and points, and there are 3 very important terms in circuit analysis that you should be clear of. The first word happens to be the node, second word happens to be branch, third word happens to be loop. अगर अभी भी आपको नहीं मालूम है तो please watch the earlier videos which were discussed before the summer breaks while describing the circuit analysis. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतने हिस्से में मैंने सारे नोड्स या पॉइंट्स को लेबल कर दिया बच्चों। अब यहाँ 3 से मैं आगे बढ़ता हूँ, ऊपर मैं जा चुका हूँ, मैं 3 से नीचे उतरता हूँ। अगर मैं 3 से नीचे की तरफ आता हूँ, when I move towards the bottom, you can notice I encounter once again with a circuit element. यहाँ पे बच्चों दिखाई दे रहा है सर्किट एलिमेंट, तो एक और सर्किट एलिमेंट मिल गया, और ये सर्किट एलिमेंट मिला इस वजह से जब मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो इसको लेबल को अब मैं चेंज करके कर दूंगा 4। तो अब यहाँ पे नंबरिंग बदल गई और इसकी नंबरिंग हो गई 4। नाउ from this I move towards my left, and when I'm moving towards my left along this path, you can see while moving from this point 4 towards my left, I do not encounter any circuit element. क्योंकि अब मुझे कोई भी सर्किट एलिमेंट बच्चों नहीं मिलता है, तो ये जो लेबल 4 है तो ये भी 4 रहेगा, क्योंकि ये सब चीजें कहलाती हैं शॉर्ट। ये सिंपल वायर है, वायर्स labels को चेंज नहीं करेंगे, तो this will be my 4. Now again from this point I move towards my left and reach to this particular point. Once I reach this particular point, again while moving from this point, middle point, towards my left, I do not encounter any circuit element. वापस से बच्चों मुझे कोई सर्किट एलिमेंट नहीं मिला। अब चूंकि कोई सर्किट एलिमेंट फिर से नहीं मुझे मिला है, तो ये 4 का लेबल 4 का ही बना रहेगा, और अल्टीमेटली मैंने सारे नोड्स या पॉइंट्स को लेबल कर दिया। तो सबसे पहला स्टेप,
सर्किट सॉल्विंग में, चाहे वो बेसिक सिंपल सीरीज पैरेलल सर्किट हो या सीरीज पैरेलल के साथ व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बो हो, सारे सर्किट एनालिसिस का सबसे पहला पॉइंट जो होता है बच्चों, वो होता है मार्किंग द नोड्स, लेबलिंग द नोड्स या नंबरिंग द नोड्स। तो ये स्टेप 1 था, मार्किंग, लेबलिंग और नंबरिंग। कुछ भी इसको कह सकते हो, अलग अलग तरीका है कहने का, लेकिन स्टेप बेसिक था। Now, once you have labeled the node, you have done 50-55% of your work. Now, this circuit is pretty simple. Now, what does this circuit suggest? It tells me, first of all, that it's a 4-node problem. तो इसमें कुल मिला के 4 नोड्स हैं, और देखो मुझे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है वो A और B के क्रॉस फाइंड करना। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब इसका एक रीड्रॉ कर रहा हूं सर्किट, और उसमें मैं 4 नोड्स बनाने जा रहा हूं। ये हो गया मेरा पहला नोड, नोड 1। और नोड 1 से देखो बच्चों A कनेक्टेड है, तो मैंने इधर ले जाके इधर A रख दिया है। और देखो दूसरा है 4, उससे B कनेक्टेड है, तो मैंने इस वाले नोड को 4 कर दिया और इधर से B बना दिया। तो मुझे अब इस A और B के अक्रॉस पूरे सर्किट को सॉल्व करना है। अब 4 नोड के थे, सेकंड और थर्ड और बाकी बचा है, तो ऊपर नीचे मैंने 2 पॉइंट्स और बना दिए, एक को सेकंड और एक को थर्ड लेबल कर दिया। दैट इज हाउ आई बिगिन बाय labeling or just putting up the nodes in the paper. So all 4 nodes have been drawn by me, and across 1 and 4, that is A and B, I need to find out the net equivalent. Then what I will be doing, I will be redrawing this circuit by putting up all the circuit elements across various nodes. Let's start it out. तो मैं सबसे पहले इससे स्टार्ट करता हूं। देखो बच्चों, ये वाला जो नोड, ये वाला जो सर्किट एलिमेंट है जिसको मैं इस समय हाईलाइट कर रहा हूं या सर्किल कर रहा हूं, ये 1 और 3 नोड के अक्रॉस कनेक्टेड है ना। तो यहां देखो ये 1 है और ये 3 है, इसके अक्रॉस मुझे एक सर्किट एलिमेंट कनेक्ट कर देना है और इसका लेबल कर देना है C। तो ये हमने लेबल कर दिया C। ठीक, तो 1 और 3 के अक्रॉस एक C कनेक्टेड था, मैंने मार्क कर दिया C को, एंड आई एम डन विद दिस पर्टिकुलर component. Now let's move ahead now. So this component is over. I'm just putting a cross so that I can understand that this component has been redrawn in my circuit. Now अब देखो यहां से आगे चलो, अब यहां पर आओ। अब देखो 1 और 2 के अक्रॉस ये वाला C कनेक्टेड है, तो ये है 1 और 2 का नोड, और इसके अक्रॉस एक और C कनेक्ट कर देना है मुझे। So what I'm going to do, I'm going to connect one C. So this is 1 और 2 के अक्रॉस का दूसरा C. So then I am done with this circuit element also. एक C और लगा दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो 2 और 3, तो 2 और 3 के अक्रॉस ये वाला सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड है, तो ये रहा 2 और ये रहा 3 बच्चों। इसके अक्रॉस मुझे एक सर्किट एलिमेंट कनेक्ट करना है, मैं इसके अक्रॉस एक सर्किट एलिमेंट और कनेक्ट कर देता हूं, और 3 के अक्रॉस। So 2 और 3 के क्रॉस ये सर्किट एलिमेंट आ गया। आई एम डन विद दिस वन आल्सो। सो this and this I have redrawn in my circuit. Now you can see it has started taking the shape of a Wheatstone bridge slowly and slowly. Now let's move on to the next circuit element. अब तुम देखोगे कि 1 और 4 के अक्रॉस एक सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड है। अब बच्चों ये 1 है और ये 4 है, इसके अक्रॉस मुझे जाना है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक तार यूं निकाल लेता हूं, ये लेके जाता हूं, ये C लगा देता हूं, और ये ले जाके ये ऐसे 4 के क्रॉस कनेक्ट कर देता हूं। ठीक, तो ये देख रहे हो, ये वाला सर्किट एलिमेंट, सॉरी ये वाला सर्किट एलिमेंट 1 और 4 के क्रॉस कनेक्टेड था, तो ये 1 था और ये 4 था, उसके क्रॉस मैंने ले जाके ये सर्किट एलिमेंट C फिर से कनेक्ट कर दिया। तो आई एम डन विद दिस वन आल्सो। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2 और 4 के क्रॉस भी एक सर्किट एलिमेंट है, 2 और 4 के क्रॉस, तो ये रहा पॉइंट नोड 2 और ये रहा 4, और 2 और 4 के क्रॉस एक और सर्किट एलिमेंट था हमारा C अमाउंट का, ये हमने ड्रॉ कर दिया और यहां पर इसको भी कनेक्ट कर दिया। तो आई एम डन विथ दिस सर्किट एलिमेंट आल्सो।
अब व्हाट नेक्स्ट, एक और सर्किट एलिमेंट बचा है, वो किसके अक्रॉस कनेक्टेड है बच्चों, 3 और 4 के अक्रॉस। तो ये है 3 और ये है 4, और इसके अक्रॉस एक और सर्किट एलिमेंट है, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। तो अब तुम देख सकते हो जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखने वाला सर्किट एलिमेंट था, मैंने उसको एक जाने पहचाने फॉर्मेट में बना लिया है। और अगर तुम देखोगे तो इतना हिस्सा ए और बी के अक्रॉस ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज का हिस्सा है, और साथ ही साथ इस व्हीट स्टोन ब्रिज की खासियत क्या है कि ये एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, जो कि जो कंपोनेंट्स का रेशियो इन द आर्म्स है अक्रॉस द डायगोनल 2 3 आर इन प्रोपोर्शन। यहां का रेशियो देखो C by C, यहां का रेशियो भी देखो C by C, so they are in proportion, so this diagonal element is of no use. So across the diagonal 2 3 the ratio of the components in the arms are in proportion, so I can check it out that C by C is equals to C by C. So that's why this particular diagonal element is no longer for me in use. Am I clear with this much part? Hope you must have understood this much. Yes, sir. Technique of labeling, numbering or marking the nodes and redrawing the circuit. बेटा पूरी सर्किट एनालिसिस में अगर आपने इस स्टेप को सीख लिया तो मेरे ख्याल से किसी भी तरह का सर्किट एलिमेंट आपको कभी भी किसी भी तरह का सर्किट डायग्राम आपको परेशान नहीं करता। सिर्फ एक ये स्टेप है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सर्किट एनालिसिस। आपको लेबलिंग करना आना चाहिए, ब्रांचेस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, नोड्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और एक छोटी सी बात को दिमाग में रखना आना चाहिए कि अगर कोई रास्ते में शॉर्ट है तो शॉर्ट से नंबरिंग या लेबल चेंज नहीं होता। तो ये 4 था, ये भी 4 था, ये भी 4 था, क्योंकि ये शॉर्ट था। लेकिन जब मैं 1 से 3 की तरफ चला तो बीच में सर्किट एलिमेंट था, इसलिए लेबल बदला। तो लेबलिंग करने का अगर तरीका आपने सीख लिया तो सर्किट एनालिसिस इज वेरी वेरी प्रिटी सिंपल। नाउ अब तुमने देखा कि ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज था, इसलिए डायगोनल एलिमेंट का सी नॉन यूजेबल हो गया, अनयूजेबल हो गया, और मैं इसको अब क्या कर सकता हूं, रिमूव कर देता हूं यहां से। तो आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट बिकॉज दिस इज ऑफ नो यूज एंड यू विल फाइंड द सर्किट टू बी प्रिटी सिंपल। अब देखो ये नोड्स हैं 1 और 4, और इस नोड्स के अक्रॉस बच्चों सेम पेयर ऑफ नोड्स के अक्रॉस जो कुछ भी कनेक्ट होता है उसको ब्रांचेस कहते थे। पढ़ा था ना, नोड्स एंड ब्रांचेस। तो अक्रॉस द पेयर ऑफ 1 and 4 नोड्स जो कुछ भी कनेक्टेड है उसको हम लोग फिजिक्स में ब्रांचेस के नाम से जानते हैं। वंस अगेन, अगर आप लोगों ने अभी भी नोड्स और ब्रांचेस वाली टर्मिनोलॉजी नहीं सीखी है तो प्लीज गो टू द यूट्यूब चैनल ऑफ माइन, वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो, थोड़ा सर्च कर लो, और ना मिले तो फिर मुझे बताना, मैं उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो ये नोड 1 और ये नोड 4, अब उसके अक्रॉस ये एक पर्टिकुलर ब्रांच है बच्चों, एक ये ब्रांच है बच्चों, सेम पेयर ऑफ नोड्स के अक्रॉस ब्रांचेस 1 और 4 के अक्रॉस देखो, एक ये ब्रांच, एक ये ब्रांच और तीसरा ये ब्रांच। तो कितने ब्रांचेस कनेक्ट कर दिए मैंने, 3 ब्रांचेस कनेक्ट कर दिए। इन अ ब्रांच सर्किट एलिमेंट्स आर इन सीरीज। किसी भी ब्रांच में सर्किट एलिमेंट सीरीज में होते हैं। तो इस ब्रांच में इसको मैं जिसको ब्रांच 1 कह रहा हूं, B1, ठीक है, फ्यूचर में इसको B1 कहूंगा, आगे के डिस्कशन में ये B2 यानी ब्रांच 2, और ये B3 ब्रांच 3। अब देखो B1 में 2 सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड है, C और C। तो इन अ ब्रांच सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। तो ये एक लर्निंग आउटकम था उस पर्टिकुलर वीडियो का कि इन अ ब्रांच circuit elements are connected in a series. In a branch circuit elements are connected in a series. Circuit elements are connected in series. समझ में आ गई बात? तो ये C और ये C सीरीज में हो गए। तो नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज क्या होता था बच्चों? क्या फॉर्मूला था नेट कैपेसिटेंस का, कोई बताएगा? अनम्यूट करो अपने आप को और बताओ जरा, किसी को नहीं याद है?
बेटा बहुत जल्दी टेस्ट होने जा रहा है। So 1 upon C net is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2. Very good. And who was this? Please tell me your name also. So Harsh. हर्ष। 12th है हर्ष और Yes. 12th B. Okay हर्ष, great. So हर्ष ने बिल्कुल सही बताया कि जब सीरीज में कोई चीज कनेक्ट होती, कैपेसिटेंस, सॉरी सीरीज में अगर कैपेसिटेंस कनेक्टेड होते तो 1 अपॉन सी एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू, और इसी तरीके इसी फॉर्मूले को मैं रीफॉर्म करके लिख सकता हूं दो कैपेसिटेंस के लिए, सी एस इज इक्वल्स टू सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। तो यहां पे देखो ये C1 C2 है, C1 C है, C2 भी C है, तो इसका जो नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा C स्क्वायर अपॉन 2C एंड दैट विल बी इक्वल्स टू अल्टीमेटली C by 2। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ब्रांच 1 में नेट कैपेसिटेंस कितना आ गया बच्चों? C by 2। किसी को कोई कंफ्यूजन? मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला लिया सीरीज का, सीरीज में कैपेसिटेंस जब कनेक्ट होते हैं तो उसका जो नेट रिजल्टेंट का फॉर्मूला है 1 अपॉन सी एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू। अब आ जाओ ब्रांच 2 में। ये ब्रांच 2 है, इस ब्रांच 2 में भी तो दो कैपेसिटेंस कनेक्टेड है। कैसे कैपेसिटेंस कनेक्टेड है? इन अ ब्रांच सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अब यहां पे जब तुम निकालोगे तो ये भी 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी, तो इसका भी नेट रिजल्टेंट आ जाएगा C by 2। और ब्रांच 3 में तो कोई और एक से ज्यादा सर्किट एलिमेंट है ही नहीं, एक ही सर्किट एलिमेंट है, वो कितना है बच्चों? C। तो ब्रांच 1 में C by 2, ब्रांच 2 में C by 2 और ब्रांच 3 में C। ये बात क्लियर हो गई सबको? जरा सा अनम्यूट करके बोलो हाँ या ना, ताकि मुझे पता चल सके, फीडबैक मुझे मिले। यस सर। यस सर। यस सर। ग्रेट। अब बच्चों तुमने इस सर्किट को जो देखने में इतना कॉम्प्लेक्स था, देखो संभल के कितना सॉल्व होके कितना सिंपल बन के आ गया। हमने सिंपल तरीके का इस्तेमाल किया, दो तीन चीजों का ध्यान में रखा, वो दो तीन चीजें फिर से रीइंफोर्स कर रहा हूं। हमने नोड्स को लेबल या नंबर किए हैं। जो नोड्स शॉर्ट से कनेक्टेड थे उनका नंबर सेम रखा, जो नोड शॉर्ट से कनेक्टेड नहीं थे उनको चेंज किया उनका लेबल। फिर ब्रांच के अंदर जितने भी सर्किट एलिमेंट्स कनेक्टेड थे हमें मालूम है वो सीरीज में थे, तो उनको सीरीज में रख के सिंप्लीफाई कर दिया। और अब तीसरा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस क्वेश्चन का, वो ये है इस बात को रियलाइज कराना तुम्हें कि अक्रॉस द सेम पेयर ऑफ नोड्स, ठीक मैं लिख देता हूं, अक्रॉस द सेम पेयर ऑफ नोड ऑल ब्रांचेस आर इन सीरीज। Across the same pair of nodes, all branches are in series. तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इसका, across same pair of nodes सॉरी ऑल ब्रांचेस आर इन पैरेलल, मैं बाय मिस्टेक बार बार सीरीज बोल गया। ऑल ब्रांचेस आर इन पैरेलल across same pair of nodes, all branches are in parallel। वैसे भी ध्यान रखना ब्रांचेस हमेशा पैरेलल में रहती हैं। तो across which pair of nodes हम लोग बात कर रहे थे? 1 and 4 की बात कर रहे थे। तो across the branch 1 and 4, across the branch 1 and 4, sorry, across the nodes 1 and 4, all the branches, कितनी ब्रांचेस है हमारे पास? B1 B2 B3। तो B1 B2 B3 सब क्या हो जाएंगी? सबके सब पैरेलल में हो जाएंगे। मैं रिपीट करता हूं फिर से, across the same pair, which pair we are talking about? We are talking about the pair 1 and 4। so across the same pair of nodes that are 1 and 4, branches B1 B2 and B3 are in parallel। so we are going to apply that since they all are in parallel। so the net capacitance C net will be, parallel में capacitance का फॉर्मूला क्या था? CP is equals to C1 plus C2 plus C3। very good। Is that Karthik? Yes sir।
ओके कार्तिक, ग्रेट। Cp इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहाँ पे तुमने उसको रख दिया C/2 प्लस C/2 प्लस C। तो एलसीएम अब आप यहां से ले लोगे 2 का, C प्लस C प्लस 2C, 2C प्लस C, 3C प्लस C, 4C, 4C by 2, and that on simplifying it should give me 2C. Is that clear? Is this okay to everyone, beta? Yes, sir. So this, Yes, sir. so this was how you should approach for any type of circuit solving, expecting that this particular example must have introduced to you the concepts about the circuit solving. What was the learning objective? I will just reiterate once again, and thereafter you can go ahead with the further whatsoever the numerical problems are left in that particular exercise. अगर यही तरीका अपनाओगे तो ज्यादा आसान रहेगा तुम्हारे लिए सर्किट सॉल्विंग, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, आपके पास इससे भी बेहतर टेक्निक्स हो सकती है, लेकिन जो मुझे मालूम थी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सबसे पहला स्टेप जो था वो बिगिन करते थे हम लोग कैसे, फ्रॉम नंबरिंग द नोड्स और पॉइंट्स। और जब ये नंबर कर रहे थे तो हमने क्या ध्यान रखा, हमने ध्यान में एक बात को लेके रखा, दिमाग में एक चीज लेके चले कि द नोड्स कनेक्टेड विद अ शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है सिंपली वायर, और सिंपली बाय वायर कैरीज द सेम लेवल। ये इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसी से बच्चे सर्किट सॉल्विंग में या उलझते हैं या निकल आते हैं। द नोड्स कनेक्टेड विद अ शॉर्ट कैरीज द सेम लेबल। ये पहली बात है जिसको आपको ध्यान में रखना, पहला स्टेप है जो जरूर कर लेना चाहिए। सेकंड, इसके बाद तुम्हें दो बातों का ध्यान में रखना है। पहला, इन अ ब्रांच circuit elements, CKT means circuit, okay? So circuit elements are connected in series. और तीसरी चीज जिसको आपको दिमाग में रख के चलनी है, across the same pair of node all the branches are connected in so these are the three basic points that you should take care about while trying to solve any circuit. I hope this particular example must have given you the complete insight about all these 3 points. If there are any confusion related to it, please let me know. Else, today's discussion will get over at this point. And I believe you have got a test coming up of chemistry. Is that so? बच्चों आज तुम लोग का टेस्ट है ना केमिस्ट्री का. So we will be there after breaking this meeting and then you can go for your test and do the needful. बताओ कोई और ऐसी चीज जो इस सर्किट में आपके नहीं समझ में आई है, या कोई मेरा बताया हुआ कोई पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आया, वो 3 पॉइंट्स के बेसिस पे जैसे मैंने सर्किट सॉल्व किया. Is that okay with everyone? Yes, sir. So shall I end the meeting over here, or anything that you wish to ask me? So by this we are going to finish up with the DC circuit analysis.
with this, we are going to finish up with the DC circuit analysis. From the next turn, we are going to start out with mechanism of current flow inside any circuit. And please, now Kirchhoff's law को भी हमने discuss कर लिया था. So kindly finish up with both the assignments of Kirchhoff's law and DC circuit analysis and Wheatstone bridge. So इन दोनों के assignments आपके पास थे. DC Wheatstone bridge का assignment भी अभी बहुत बच्चों ने नहीं submit किया हुआ है. Please kindly submit that also. It's about, the time is already finished, and Kirchhoff's law का भी time finish होने वाला है, so kindly submit in time. Thank you so much. I'm going to end the meeting over here. Thank you, sir.